Hello, dear children. Good evening and welcome to English Kingdom. This is your teacher Deepak Juneja, and today we are going to commence a new lesson which you can see on the screen as well. The title of the screen is Indigo, and this is composed by Louis Fischer, who was born in 1896 and died in 1970. Before we proceed forward about getting the information of the author, let me give you certain hints about this title Indigo. Indigo refers to a dark blue color, and this is a kind of substance as well, a chemical as well, which is used at your homes, also in bathrooms, to wash the clothes, to give a sharper look to white clothes, which in Hindi is also called Neel. And you will wonder to know that this Neel was previously, nowadays it is synthetic indigo, which is in the form of a chemical, made of chemicals, but previously it was grown in the form of crops in the fields. And in this lesson we will be reading in that particular reference only, when the indigo, when this indigo was grown in the form of crops in the fields. And indigo, you must be knowing that this is a very famous brand name also in the aviation sector. It's the name of a flight company, aeroplane company as well, and their color is also dark blue. But we are not going to talk about that indigo. Actually, in this lesson we are going to talk about that indigo which is a crop, and nowadays it is synthetic indigo which is being used at home to wash the clothes. So Louis Fischer, I'm going to show you the indigo plants as well. Nowadays it is no, indigo plants are not there. Synthetic indigo is available. You can see here, these are indigo plants. इन्हीं से indigo लिया जाता था और घरों में कपड़ों को धोने के लिए, सफ़ेद कपड़ों को अच्छा लुक देने के लिए जो नील यूज़ किया जाता है, उसी से प्रोड्यूस किया जाता था. Later on it became synthetic indigo. So I'm going to give you certain information about the composer of this lesson also, Louis Fischer. He belonged to US, and you can see here the life of Gandhi. It is the name of the biography which he has written about Mahatma Gandhi, and some more information also is given about Louis Fischer. He was an American journalist. Among his works were a contribution to the ex-communist treatise, The God That Failed. ये सब हमें नहीं पढ़ना है. He was born on 29th of February 1896 in Philadelphia, United States, and died on 15th of January 1970. Nationality American was that. The Life of Mahatma Gandhi. This was the name of biography from which this extract has been taken. So let's go back to the text. Louis Fischer was born in Philadelphia, which we have already read about that. He served as a volunteer in the British Army also between 1918 and 1920. Fischer made a career as a journalist and wrote for the New York Times. New York Times is the name of a magazine, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. Princeton University के वो एक स्टाफ मेंबर भी थे, फैकल्टी भी थे. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लेसन है, उनकी एक बुक है, जो बायोग्राफी उन्होंने महात्मा गांधी की लिखी है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उससे ये एक्सेप्ट लिया गया है. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. So let's begin this one. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. So before we go for this particular paragraph, let me tell you certain things. अपने गांधी जी के बारे में you must have heard some incidents. आपने सुना होगा गांधी जी के बारे में कुछ घटनाओं को. See, all great men cannot become great ओवरनाइट. कोई भी जो महान आदमी महान बनते हैं वो ओवरनाइट नहीं बनते हैं. इट आल्सो हैपन्स इन स्टेप्स. ये भी स्टेप्स में होता है. एंड समटाइम्स दे रियलाइज देयर ओन पावर्स. कभी कभी वो अपनी पावर्स को रियलाइज करते हैं और फिर अचानक से ग्रेट बन जाते हैं, ग्रेट वर्क करने लग जाते हैं. तो विद गांधी आल्सो the same happened. He also was from a rich family. He became a barrister also. He went to South Africa also for the study of law, and there also some bad incidents happened with him. Then he decided to fight against that. Or after fighting for those black people in South Africa, he came back to India.
till that time he some people knew him and many of the people of India knew him. So उसी के बाद की कहानी है, जो साउथ अफ्रीका में जो इंसिडेंट हुई थी उन्हीं के बाद की ये कहानी है. So Gandhi ji in this particular lesson is going to describe कि how did it come to his mind that India should get free of British people. गांधी जी के दिमाग में ये कैसे आया कि इसको इंडिया को ब्रिटेन के लोगों से आज़ाद कराना है. इतने बड़े होने के बाद में अचानक से कैसे आया. तो सम थिंग्स आर देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल, सम शॉर्ट इंसिडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए बिग मूवमेंट. यानी कोई बड़ा मूवमेंट होता है, कोई बड़ी चीज़ होती है तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें उत्तरदायी होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं. सो इन दिस बायोग्राफी गांधी जी इज गोइंग टू टेल to Louis Fischer that how did it happen that he decided to fight against the existence of British people in Indian territory. So when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम सेंट्रल इंडिया के अंदर यानी महाराष्ट्र के अंदर ये जगह स्थित है, सेवाग्राम आश्रम. I can show you the images also of सेवाग्राम आश्रम. Look at this one. This is in वर्धा. सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है. वर्धा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी मानी हुई यूनिवर्सिटी है. ये वर्धा के अंदर सेवाग्राम आश्रम था गांधी जी का. He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. Means it all started in 1917. Urge means request. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. So Gandhi ji had gone to, where had he gone to? He had gone to the annual convention. Convention means meeting of the Indian National Congress Party in Lucknow. The convention was held in Lucknow and it was the time of December 1916. This is the spelling of Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. Delegates is, delegate कहते हैं a group of some members. जो ग्रुप किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए बनता है कुछ मेंबर्स का, उसे डेलीगेट कहते हैं. 2,301 डेलीगेट्स थे एंड मैनी विजिटर्स वर देयर इन द मीटिंग. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कहते हैं हैपनिंग्स मीन्स जो घटनाएं वहां हो रही थी. गांधी रिकाउंटेड मीन्स रिकॉल्ड. गांधी रिकॉल करके बता रहे हैं. अ पीजेंट केम अप टू मी. पीजेंट रेफर्स टू अ फार्मर. अ फार्मर इज द ऑनर ऑफ हिज ओन फील्ड. While a peasant works on some works, he is actually is a tenant. वो एक tenant होता है and he works in the fields of others. वो दूसरों के खेत में काम करता है. This is the difference between a farmer and peasant. A peasant is not the owner of the field. He came up to me and looking like any other peasant in India. He was very poor and emaciated. Emaciated कहते हैं very thin, बहुत पतला. एक peasant गांधी जी के पास में आया and what did he say? I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran. मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. I am from Champaran. And fortunately, I have found certain images also of Rajkumar Shukla on internet. You can see here Rajkumar Shukla in Indigo. Look at him. This picture is, and in this picture you can easily identify that person. I think this person must be the Rajkumar Shukla. Rajkumar Shukla शायद यही होंगे. Thin, poor, emaciated दिखाई भी दे रहे हैं. And you can see some stamps also in that one. It's referred or it's issued in the name of Rajkumar Shukla. It is written there. So Rajkumar Shukla or Shukla we can read in that way. Let's go back to the text. He said that I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. The poor peasant was requesting Gandhi ji to come to his district. And what was the name of the district? The name of the district was Champaran. Gandhi had never heard of that place. Gandhi had never heard about Champaran. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. ये हिमालयाज के foothills में स्थित था near the kingdom of Nepal. I'm going to show you in the map also. Just go to the map. Here it is. Look at this. This is the Nepal border and it is situated here, somewhere in Bihar. So it must be here, Champaran. This is Bihar. Okay. Let's go back to the text. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. एक पुराना अरेंजमेंट था. अरेंजमेंट मीन्स एग्रीमेंट था. किस किस के बीच में? ये जो किसान थे, पीजेंट्स थे, चंपारण के पीजेंट्स और ब्रिटिश लोगों के बीच में.
क्योंकि ब्रिटिश हमारी टेरिटरी पर शासन करते थे, इसलिए वो सभी ज़मीनों के अपने आप को मालिक समझते थे। तो चंपारण पीजेंट्स के बीच में और ब्रिटिश जो लोग थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट था। वो दोनों शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मीन्स दोज हु शेयर द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को शेयर करते हैं, यानी एक ही ज़मीन पर दो लोग, ये जो चंपारण के पीजेंट्स से ये खेती करते थे, खेती के मालिक कौन थे? ब्रिटिश लोग थे। इस तरह से वहाँ पर जो क्रॉप होती थी वो उस क्रॉप को दो लोग शेयर करते थे, ब्रिटिश लोग शेयर करते थे, और यहाँ पर ये चंपारण के पीजेंट्स भी उसी ज़मीन पर जो खेती करते थे वो शेयर करते थे। राजकुमार शुक्ला was one of them. He was illiterate but resolute. Illiterate means who has not done the study. अनपढ़ को कहते हैं. Resolute means determined. This is the first quality of Rajkumar Shukla which has been accepted by गांधी जी as well. कि जो ये राजकुमार शुक्ला था ये illiterate थे लेकिन बहुत ही determined थे. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi ji." So why had he come to Congress session, and why was he asking Gandhi ji to come to his district? Actually he wanted to complain about the injustice. वो उस injustice के बारे में शिकायत करना चाहते थे जो लैंडलॉर्ड सिस्टम वहाँ बिहार में चल रहा था, जो लोगों के, ब्रिटिश लोगों के बीच में और चंपारण के किसानों के बीच में जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट की शिकायत करने आए थे। तो किसी ने उनसे कहा था कि यू मस्ट टॉक टू गांधी जी बिकॉज ही हैज़ द सॉल्यूशन, ही मस्ट बी हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur. Look at the spelling of Kanpur. This is the old spelling of Kanpur. आजकल spelling इसकी Kanpur है और this was the previous spelling. गांधी जी ने शुक्ला जी को क्या कहा कि उनका कानपुर में अपॉइंटमेंट है, and he was committed to go to other parts of India. शुक्ला accompanied him everywhere. गांधी जी ने कहा कि उनका बहुत अपॉइंटमेंट है और उन्हें दुनिया इसके इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भी जाना है, बट शुक्ला वॉज वेरी रेजोल्यूट एज इट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड बाय गांधी जी। शुक्ला ने उनका हर जगह उनको अकम्पनी किया, यानी अकम्पनी करने का मतलब उनके साथ गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तब गांधी अपने आश्रम, अहमदाबाद में भी उनका आश्रम था, वहाँ लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड, means for weeks he continuously followed Gandhi ji, and at last he continuously was making him a request to fix a date. Again यहाँ पे देखिए fix a date, he begged. उन्होंने beg करने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना कि आप एक डेट फिक्स कीजिए। Impressed by the sharecropper's tenacity, tenacity कहते हैं डिटर्मिनेशन को, यानी इस शेयर क्रॉपर, यानी शेयर क्रॉपर रेफर्स टू राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला की टेनेसिटी में डिटर्मिनेशन से काफ़ी इंप्रेस हुए गांधी जी, और उसकी स्टोरी से गांधी ने क्या कहा? आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। सो गांधी जी फाइनली फिक्स्ड अ डेट एंड आस्क्ड हिम टू कम टू कैलकाटा। कैलकाटा जिसका नाम आजकल बदलकर कोलकाता हो गया है, KOLKATA। उन्होंने डेट दी, कम एंड मीट मी, आओ और मुझसे मिलो और मुझे वहां से ले जाओ। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस मीन्स ही वाज वेरी इम्पेशेंट। बहुत इम्पेशेंटली गांधी जी का इंतजार हो रहा था, शुक्ला जी कर रहे थे वहां पर, जहां पर भी अपॉइंटमेंट दिया गया था कलकत्ता के अंदर। जब गांधी जी वहां पहुंचे, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, गांधी जी के फ्री होने का इन्होंने इंतजार किया। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. Then when they went to Patna in Bihar, there Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party of India. तब शुक्ला जी उन्हें कहाँ ले गए? एक वकील के घर। What was the name of the lawyer? The name of the lawyer was Rajendra Prasad, and as you know that he later on he became the president of the Congress Party. He became president of the Congress Party and of India as well. India के भी president बने। Rajendra Prasad was out of town. He was not at home, but the servants knew Shukla as a poor yeoman. Yeoman कहते हैं किसान को, श्रमिक को, लेबर को। लेकिन सर्वेंट्स उस शुक्ला को जानते थे, राजकुमार शुक्ला को, कि ये कोई गरीब सा किसान है। वो पेस्टर्ड देयर मास्टर, पेस्टर्ड मीन्स टीज्ड, जो उनके मालिक को परेशान करता, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए परेशान करता है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने उसे ग्राउंड पर, जमीन पर बिठा दिया उसके कंपेनियन के साथ में। व्हाट वाज द कंपेनियन? द कंपेनियन वाज गांधी जी, whom they took to be another peasant. They did not know him,
सर्वेंट्स जानते नहीं थे गांधी जी को, तो उन्होंने सोचा कि ये भी कोई दूसरा किसान होगा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। सो गांधी जी वांटेड टू ड्रिंक वाटर बट ही वॉज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यानी सर्वेंट्स ने उनको पानी खींचने नहीं दिया। कहाँ से? कुएं से, क्योंकि उसकी गांधी जी की बकेट से कुछ पानी की बूंदें गिर के पूरे पानी को खराब कर सकती थी। तो हियर दिस इज द कास्ट सिस्टम इज बीइंग रिफ्लेक्टेड हियर, जो जातीय प्रथा है उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर जब पहले होता ही था, आजकल तो इतना नहीं होता है। सो हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? सो गांधी जी इज जस्ट आस्किंग कि उनको कैसे मालूम पड़ा इन सब चीज़ों के बारे में, और हाउ डिड दे कंक्लूड that he was untouchable. So Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. Impart कहते हैं to give. So Gandhi ji was going to Champaran. Gandhi ji Champaran जा रहे थे, but he decided to go first to Muzaffarpur. And Muzaffarpur was en route to. En route means on the route. ये जो मुजफ्फरपुर था ये चंपारण के रास्ते पर था। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ विजिटिंग मुजफ्फरपुर फर्स्ट? मुजफ्फरपुर घूमने का, जाने का पहले पर्पस क्या था? ही वांटेड टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस। वो शुक्ला जी की प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। ही वांटेड टू कलेक्ट सम मोर फैक्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ शुक्ला, बिकॉज शुक्ला वाज नॉट एबल टू गिव द कंप्लीट डिटेल। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द प्रॉब्लम एक्चुअली वाज। So he accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. उन्होंने टेलीग्राम भेजा। Whom did he send the telegram to? Professor J.B. Kriplani. Who was he? He was a professor in Arts College in Muzaffarpur. And where had he met him? He had met him at Tagore's Shanti Niketan School. तो उनको एक टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम क्यों भेजा? जस्ट टू रिसीव हिम, कि वो आए, उन्हें स्टेशन पर रिसीव करें, उनके रहने खाने का अरेंजमेंट और उनका जो ये प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स कलेक्ट करें। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15th of April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Large bodies of students means large number of students. He was waiting there. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. अब गांधी जी के रहने का इंतजाम कहाँ हुआ? वन प्रोफेसर मलकानी वॉज देयर, हु वॉज अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, एंड उनके घर में रहने की व्यवस्था। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। सो वाई वॉज इट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग? फर्स्ट तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग वॉज दैट गांधी जी वॉज गोइंग टू स्टे एट द होम ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि गांधी जी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर पे रुकने जा रहे थे। तो उसमें बड़ी बात क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट प्रोफेसर किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो हु वाज रेजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो अपनी वॉइस को गवर्नमेंट के खिलाफ उठा रहे हैं, उनको शेल्टर नहीं दे सकते थे। अगर वो शेल्टर देते हैं तो दे कुड हैव बीन सस्पेंडेड, उन्हें जॉब से निकाला जा सकता है। बट प्रोफेसर मलकानी डिड नॉट केयर अबाउट दैट। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. और गांधी जी was an advocate of home rule. Home rule क्या होता है? खुद का शासन। यानी we are Indians, तो हमारे इंडिया में हम इंडियंस का ही शासन चलेगा। British people cannot rule on us. ब्रिटिश लोग जो है हम पर रूल नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने अपना आंदोलन, उस समय लोग जानते ही थे कि वो होम रूल की वकालत करते हैं, तो फिर उनको अगर इस तरह से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अगर शेल्टर देता है तो इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट मीन्स अराइवल, गांधी जी के आने की सूचना, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन का जो नेचर था, यानी टू गो फॉर द जस्टिस फॉर द पीसेंट्स ऑफ चंपारण, चंपारण के श्रमिकों के लिए, चंपारण के किसानों के लिए जो जस्टिस का जो मिशन था, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। these two facts, ये जो facts थे मुजफ्फरपुर में फैल गए और चंपारण में भी पहुंच गए। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. And immediately जो sharecroppers थे चंपारण के, वो पैदल ही वहां से रवाना हो गए और अपने कन्वेंस से यानी व्हीकल से आ गए अपने चैंपियन को देखने के लिए, अपने चैंपियन से मिलने के लिए। Who was this champion? This champion obviously was महात्मा गांधी। मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi to brief him. मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स जो उनका
केस लड़ रहे थे उन सभी शेयर प्रॉपर्स का, वो भी गांधी जी को ब्रीफ करने के लिए है। ब्रीफ करने का मतलब टू टेल समथिंग इन ब्रीफ, कुछ चीज़ों को ब्रीफली बताना। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप्स इन कोर्ट। क्यों ये दे जो है, दिस रेफर्स टू लॉयर्स। ये जो लॉयर्स थे ये कोर्ट के अंदर इन्हीं शेयर प्रॉपर्स का केस लड़ते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। दे टोल्ड अबाउट द केस एज वेल एज देयर फी आल्सो दे टोल्ड। This fee is very important here because you will be finding that Gandhiji chided all the lawyers for this kind of fee. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided means rebuked. Gandhi ji ने डांटा सभी lawyers को कि why are you collecting so much big fee from these poor sharecroppers? He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. गांधी जी का कहना था कि हमें अब कोर्ट में नहीं जाना। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, मीन्स टेकिंग सच केसेस, इन केसेस को कोर्ट में ले जाने का इट्स डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, जहाँ पीजेंट्स इतना डरे हुए हैं, क्रश्ड मीन्स कुचले, मतलब मेले कुचले का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा शोषित हैं, एक्सप्लॉइटेड हैं। और फियर स्ट्रिकन मीन्स बुरी तरह से डरे हुए हैं। Law courts are useless. These law courts are useless means they do not have any sense. The real relief for them is to be free from fear. उनका real relief क्या होगा? हमें उन्हें fear से free करना होगा। So here in the full story you have to observe Gandhi as a leader also. गांधी जी को लीडर के रूप में भी आपको एक ऑब्जर्व करना पड़ेगा। How good leader he was. He before going to Champaran, he went to Muzaffarpur. He wanted to understand the problem completely, and after understanding the problem completely, then he came to Champaran, and so many people were also there. And here also he understood well about the mentality of all those poor people. उन poor people की mentality को भी सोचा समझा। अब what was this arrangement? ये arrangement जो था ब्रिटिश लोगों के बीच में और ये चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे इनके बीच में क्या अरेंजमेंट था? मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड कहते हैं फर्टाइल लैंड, उपजाऊ जमीन। चंपारण की जो डिस्ट्रिक्ट की जो उपजाऊ जमीन थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। ये पूरी की पूरी जमीन लार्ज एस्टेट्स में बटी हुई थी। एस्टेट्स मीन्स प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों में बटी हुई थी। इन प्रॉपर्टियों के मालिक थे इंग्लिशमैन, ब्रिटिश पीपल, और इन पर काम करते थे इंडियन टेनेंट्स। टेनेंट्स कहते हैं किराएदारों को। तो ज़मीन के ऊपर काम करने वाले किराएदार थे, यानी ज़मीन थी ब्रिटिश लोगों की और उस पर इंडियन लोग काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। द चीफ कमर्शियल क्रॉप ये थी। The landlords compelled all tenants to plant 3/20th or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. So suppose this is the land. इस लैंड के अंदर आप ये देखिए क्या उन्होंने कर रखा था, 3/20th या 15%, यानी आप ये समझ लीजिए ये 15% जैसे ये ज़मीन है। इतनी ज़मीन के ऊपर ये जितने भी इंडियन टेनेंट्स हैं ये अपनी फसल उगा सकते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से के अंदर इनको इंडिगो उगानी पड़ेगी। और इस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी इंडिगो होगी, इस इंडिगो को ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो पूरा एरिया है इसकी जो क्रॉप है वो अपने साथ में खाने पीने के लिए ले जा सकता है। दिस वॉज द रेंट, यानी पूरी जो ज़मीन है उसका 15% के ऊपर इंडिगो की खेती करनी है, और पूरी की पूरी जो एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट है उसे रेंट के रूप में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को देना है। एंड दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयर वाज ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रिटिश पीपल एंड इंडियन पीजेंट्स। सो व्हाट हैपेंड, इसमें हुआ क्या फिर, आखिर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? The landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. उसी समय synthetic indigo came into market. Synthetic indigo जो अब आज हम घरों में यूज कर रहे हैं, it came into market, ये मार्केट में आ गया।
And which country developed it? Germany developed it. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. So this synthetic indigo was very cheap. ये सिंथेटिक इंडिगो जो है क्रॉप इंडिगो से बहुत सस्ता था. तो सस्ता था तो इसका मतलब जो इस क्रॉप इंडिगो है इसको लेने वाला कोई मिलेगा नहीं, सिंथेटिक इंडिगो आ गया. तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एग्रीमेंट में चेंज करना चाहा कि हमें ये 15% अरेंजमेंट, वी डू नॉट वांट दिस 15% इंडिगो हार्वेस्ट. यू कैन वर्क ऑन होल द फील्ड, आप पूरे फील्ड पर काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो कीमत जब मार्केट में पहले मिलती थी दैट यू हैव टू पे टू अस. और जो क्रॉप इंडिगो था इट वाज वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा था और उसकी कीमत ज़्यादा थी. तो उन्हें कंपनसेशन के रूप में शेयर क्रॉपर्स को कहा कि आपको ये हमें पे करना है एंड यू कैन गो फॉर द फुल फील्ड. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज irksome to the peasants and many signed willingly. Irksome means irritating, problematic. शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट पीजेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी साइन कर दिए. भाई नाउ दे वर गोइंग टू गेट फुल फील्ड, पूरा फील्ड उनको मिलने जा रहा है, तो क्या दिक्कत है. इसका जो मुआवजा है, कंपनसेशन है, दे विल पे टू दैट. मैनी साइंड विलिंगली. विलिंगली मीन्स एज पर देयर ओन विल, अपनी इच्छा से साइन कर दिए. दोज हु रेसिस्टेड, जिन्होंने अपोज किया, एंगेज लॉयर्स, लॉयर्स एंगेज किए. द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, थग्स कहते हैं गुंडे बदमाश को. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और उसी समय इस सिंथेटिक इंडिगो के बारे में इंफॉर्मेशन जिन्होंने साइन किए थे, those who had already signed, उन तक पहुंच गई. And now they realized कि उन्हें तो ठगा जा रहा है, क्योंकि ये जो क्रॉप इंडिगो के नाम पर जो कंपनसेशन वसूला जा रहा था इसकी कीमत तो बहुत हाई थी. अब इसकी इतनी कीमत रही नहीं और उसके बदले में बहुत बड़ा मोटा पैसा वसूल कर रहे थे. इसलिए उनको लगा कि दे वर चीटेड, कि उन्हें ठगा जा रहा है, उनके साथ में चीटिंग की जा रही है और उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए. दिस वाज द प्रॉब्लम एंड राजकुमार शुक्ला वाज आल्सो वन ऑफ दोज पुअर पीजेंट्स एंड ही वेंट टू गांधी जी कि प्लीज कम एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. He began by trying to get the facts. Again, like a good leader, he started to collect facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. Secretary, जो British Landlord Association के secretary थे, उनसे मिले. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Secretary refused to give the information because he thought that Gandhiji was an outsider. Gandhi answered that he was no outsider because he said that he was in India and he was an Indian. That's why he was no outsider. Next, Gandhi called on British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. Then Gandhi went to meet British official commissioner. British official commissioner ये आज के district collector जैसा ही होता है. तिरहुत division in which the Champaran district lay. चंपारण district के अंदर जो तिरहुत division पड़ती है. अब ये डिवीज़न आप समझ सकते हैं, जैसे एक ज़िले के अंदर अलग अलग जो आप ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े टाउन्स होते हैं, उसी प्रकार से ये तिरहुत डिवीज़न थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर. द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत. कमिश्नर ने व्हाट डिड ही डू? ही प्रोसीडेड टू बुली, उसने उसे थ्रेटन किया, धमकाया, गांधी जी को धमकाया. एंड एडवाइज्ड मी, और उन्हें एडवाइस किया कि फोर्थविथ मीन्स इमीडिएटली यू शुड लीव तिरहुत, तुम्हें तिरहुत को इसी समय छोड़ देना चाहिए. बट गांधी डिड नॉट फियर, गांधी डरे नहीं. He did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. डरने के बजाय, वापस जाने के बजाय, he proceeded to Motihari, and Motihari was the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. Vast means big, multitude means crowd. रेलवे स्टेशन, जो उसका मोतिहारी का रेलवे स्टेशन था, बड़ी भीड़ वहां पर गांधी जी को ग्रीट करने के लिए आई. He went to a house and using it as headquarters, continues his investigation. What investigation? Investigation into the matter of Champaran peasants. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. उसी समय एक रिपोर्ट आई कि एक किसान के साथ में मिसबिहेव किया गया है पास के गांव में. गांधी decided to go and see. गांधी ने उसी समय डिसीजन लिया कि he would go and see there. The next morning he started out on the back of an elephant and he started his journey on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town
in his carriage. तो उसी समय एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आया और गांधी जी को वापस अपने टाउन लौट जाने के लिए कहा. गांधी कंप्लाइड, अपने टाउन नहीं, मोतीहारी टाउन की तरफ लौट जाने के लिए कहा. गांधी जी उसी कैरिज में गए. कंप्लाई, कैरिज मीन्स गाड़ी में, कंप्लाइड मीन्स फॉलो करना. इसी कंप्लाई से बनता है कंप्लियंस. द मैसेंजर ड्रो गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली. मैसेंजर गांधी जी को अपने साथ में ले गया घर पर, उनके घर पर, एंड वहाँ उन्हें एक नोटिस सर्व किया गया. And in the notice it was written that he should leave चंपारण immediately. उन्हें चंपारण इसी समय छोड़ देना चाहिए. गांधी signed a receipt for the notice. गांधी ने नोटिस पर साइन कर दिए that he had received the message and wrote on it that he would disobey the order. और उन्होंने उस पर लिख दिया कि वो ऑर्डर को डिसओबे करेंगे. This was called civil disobedience. आप इस टर्म से परिचित होंगे. This was the first time used by Gandhiji here. Civil disobedience. Disobedience यानी कानून, जो शासन की अवज्ञा, ये पहला एक्सपेरिमेंट गांधी जी ने यहाँ पर किया. तो what happened in consequence? In consequence means as a result. As a result क्या हुआ? गांधी received a summon to appear in court the next day. अगले दिन गांधी जी को बुलावा आ गया कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है. At night, Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar. Same Rajendra Prasad. With influential friends, he sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. तो उसी रात गांधी जी जगे रहे. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को भी टेलीग्राम किया कि वो बिहार से आ जाएं अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ में, यानी प्रभावशाली दोस्तों के साथ में, जो इंटरवीन कर सकते हैं और शासन के ऊपर दबाव बना सकते हैं. उन्होंने आश्रम को भी इंस्ट्रक्शंस भेजे और वायसराय को फुल रिपोर्ट भेजी. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स. और अगली सुबह जैसे ही गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होना था, द टाउन ऑफ मोतीहारी वॉज कंप्लीटली फिल्ड विथ पीजेंट्स. किसानों से भर गया. दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. उनमें से कईयों को गांधी के बारे में मालूम नहीं था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया था. दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज. उन्होंने तो बस इतना ही सुना था कि महात्मा वाज देयर एंड ही वांटेड टू हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण एंड ही वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज. देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन. स्पॉन्टेनियस मीन्स विच कम्स फ्रॉम इनसाइड. इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड. एक तो होता है स्पॉन्सर्ड डेमोन्स्ट्रेशन, एक होता है स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन. स्पॉन्सर्ड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? 2-4 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी, उनको पैसे दिए और उनसे विरोध करवा दिया. ये स्पॉन्टेनियस था. मीन्स टू से इट केम फ्रॉम विद इन, अंदर से आया. हजारों लोगों का. अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश. जो कोर्ट हाउस के बाहर उनका जो ये स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन था, ये उनके ब्रिटिश लोगों के डर से आज़ाद होने की शुरुआत हो चुकी थी. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन. ऑफिशियल्स जो अधिकारी थे वो गांधी के कॉपरेशन के बिना अपने आप को पावरलेस फील कर रहे थे. अब ये वाला जो सेंटेंस है, दिस मेक्स मी रिमाइंड ऑफ द सीन ऑफ ए मूवी जिसका नाम था गब्बर इज बैक. उस गब्बर इज बैक में यू मस्ट हैव सीन अक्षय कुमार इज आल्सो देयर. अक्षय कुमार जहाँ पर एट द एंड ऑफ द मूवी व्हेन ही इज कैप्चर्ड बाय द पुलिस and he is surrounded by so many people and the police authority feels helpless to control the crowd. At that time that Akshay Kumar has to come. उसी प्रकार से गांधी जी ने भी यहाँ पे किया. He helped them regulate the crowd. गांधी जी ने खुद क्राउड को कंट्रोल किया. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. तो वो बड़े पोलाइट और फ्रेंडली थे क्योंकि वो जानते थे कि इन सभी लोगों को, ब्रिटिश लोगों को साफ साफ ये प्रूफ मिल रहा है. कॉन्क्रीट प्रूफ मीन्स क्लियर प्रूफ कि दैट देयर माइट मीन्स पावर, कि उनकी ताकत. हिथेरटो मीन्स अब तक. ड्रेडेड, इतनी जो खतरनाक है, जो लोगों को डराते हैं, अब तक उनकी जो पावर इतनी खतरनाक है. एंड अनक्वेश्चन, जिस पर कोई किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस. उसको इंडियंस अब चैलेंज कर सकते हैं. So he was giving a clear signal to them. The government was baffled. Baffled means confused. What to do, not to do. Government को समझ में नहीं आ रहा था. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. The prosecutor ने ट्रायल रोक देने का
अनुरोध किया। अपेरेंटली द ऑथोरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दैट? दे वांटेड टाइम। जितने भी ऑथोरिटीज थे उनको समय चाहिए था अपने सुपीरियर से कंसल्ट करने का। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, बट गांधी प्रोटेस्टेड फॉर दैट वन कि नहीं, ट्रायल पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक स्टेटमेंट कोर्ट में पढ़ा और अपने आप को बता दिया कि आई एम गिल्टी, दैट आई हैव डिसओबेड द ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर को डिसओबे किया है। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। उन्होंने कहा कि आई हैव डिसओबेड द ऑर्डर, नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डिसओबे, इसलिए नहीं कि मैं डिसओबे करना चाहता हूँ, यह कोई ईगो का सवाल है, बट बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। लेकिन आई वॉज स्ट्रक इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, मैं ड्यूटीज के कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था कि क्या करूं क्या ना करूं। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, मैं लॉ ब्रेकर यानी कानून तोड़ने वाला भी बैड एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता था। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, दूसरी तरफ वो मानवता के नाते और नेशनल सर्विस के नाते इन पीजेंट्स की भी हेल्प करना चाहते थे, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने जो जाने का जो ऑर्डर दिया गया था उनको, उसको डिसरिगार्ड किया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, यानी उन्होंने उसका ऑर्डर का जो विरोध किया था या जिसको नहीं माना था, वो इसलिए नहीं कि वो लॉफुल अथॉरिटी को अपोज करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अपनी आत्मा की आवाज़ पर ऐसा किया है। उन्हें लगा कि ही शुड डू द ह्यूमैनिटेरियन सर्विस एंड दीज पीजेंट्स नीडेड हिम, दैट्स व्हाई ही डिसओबेड दैट ऑर्डर। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने पेनल्टी देने के लिए भी ही एग्री। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hours recess and asked Gandhi ji to furnish bail for these 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने कहा कि ठीक है, 2 घंटे का रेसिस टाइम है, और गांधी जी को कहा कि यू शुड फर्निश, कि आपको बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए दीज 120 मिनट्स। लेकिन गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया, बिकॉज बेल के लिए अप्लाई करते तो ही कुड हैव प्रूव्ड हिमसेल्फ ए क्रिमिनल, बट ही वॉज नॉट ए क्रिमिनल। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, लेकिन जज ने उन्हें बिना बेल यानी बिना जमानत के ही रिलीज कर दिया। When the court reconvened, when the court restarted, the judge said he would not deliver judgment for several days. कोर्ट ने अगली डेट दे दी, कई दिनों की बात की। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty, और गांधी जी आजाद हो गए। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो ये जितने भी फेमस लॉयर्स के नाम थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और कई प्रोमिनेंट लॉयर्स जो बड़े बड़े नाम थे, वो बिहार से पहुंचे थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, कन्फर्ड विद मीन्स टू हैड ए मीटिंग, उनकी गांधी जी के साथ में मीटिंग हुई। गांधी जी आस्क्ड देम कि व्हाट वुड हैपन इफ आई वेंट टू प्रिजन, क्या होगा अगर मैं प्रिजन चला गया। तो लॉयर्स ने आंसर दिया कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वो तो उसकी गांधी जी की हेल्प करने के लिए आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले गए तो देयर वुड नबडी देयर, सो दे आल्सो वुड गो बैक टू हिम। देन गांधी जी आस्क्ड व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, फिर इन शेयर क्रॉपर्स के प्रति जो इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। देन लॉयर्स को थोड़ा लगा कि दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। विड्रू का मतलब थोड़ी सी अलग होकर उन्होंने एक अलग मीटिंग की लॉयर्स ने। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद is telling about that particular meeting, what happened there. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. उन्होंने सोचा कि गांधी was an outsider, he was a stranger there, he was not acquainted to that particular place, yet he was ready to go to prison for the farmers. और ये जो लोग हैं खुद जो हैं ये तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, इसी एरिया के हैं, फिर भी और पीजेंट्स की सर्विस, पीजेंट्स को जो है सर्व करने का क्लेम करते हैं, फिर भी वो उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो घर चले जाएंगे इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। डिजर्शन मीन्स सरेंडर, सेपरेशन। ये अपने शेमफुल का मतलब शर्मनाक, डिजर्शन मतलब डिसीजन हो जाएगा, अलग होना हो जाएगा, शेमफुल हो जाएगा। In that way, all the lawyers thought. They accordingly went back to Gandhi
वो गांधी जी के पास में गए एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। उन्होंने उनको कहा कि वो भी उनके साथ जेल जाएंगे। Then Gandhiji said, okay, then the battle of Champaran is won. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. Court arrest होता है जेल भरो आंदोलन, जिसमें सब लोग मिलकर गिरफ्तारियां देते हैं किसी चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए, टू प्रोटेस्ट समथिंग। So this is the first part. In second part we shall study further. Second part में अगले remaining story को हम पढ़ेंगे। So till now, if you have any problem, please drop your queries in comment box. Thank you.